Hello everyone, welcome back to online learning platform. In the previous video we learned what is communication and why and how do we communicate. Now today we are going to talk about how the communication process works. The communication process is extremely vital in terms of increasing your effectiveness in communicating. So let's start. This is the diagram in front of you, how the communication process works. The first essential element in the communication process is sender. Then second, the message flow from sender, encoding message, then channel, then message reach to receiver, then receiver decode that message and he or she send a feedback to appropriate channel. Okay, so first, communication is continuous process which mainly involves sender, message, encoding, channel, receiver and feedback. The elements involved in the communication process are explained in detail below. So जब भी हम कम्युनिकेशन करते हैं, हर कम्युनिकेशन होता है तो हर कम्युनिकेशन में एक प्रोसेस होती है. तो उस प्रोसेस को जब हम एनालाइज करते हैं तो हमें पता चलता है कि उस प्रोसेस में कुछ एलिमेंट होते हैं, जैसे कि हमने अभी देखा कि सेंडर, मैसेज, एनकोडिंग, चैनल, रिसीवर एंड फीडबैक. सो फर्स्ट एलिमेंट जो उसमें बहुत इम्पॉर्टेंट है कि जहाँ से मैसेज जनरेट होता है, कम्युनिकेशन स्टार्ट होता है, वो है सेंडर. एज मिस्टर डेविस हैज सेड, द मोटो शुड बी don't start talking until you start thinking. The sender or the communicator generates the message and conveys it to the receiver. He is the source and the one who starts the communication. The communicator or sender should have some information, guidelines, motivational material that may be important to the receiver. The process of communication start from the sender, या हम कहेंगे communicator, who has something to communicate others, which और क्या होता है उसके पास communication के लिए? कुछ भी हो सकता है, whether idea हो सकती है, information हो सकती है, fact होती है, feeling हो सकती है या anything else. और जैसे कि मिस्टर डेविस का कहना है कि जब तक आप सोचना शुरू नहीं करते तब तक बात शुरू ना करें. तो इससे ये समझ में आता है कि सेंडर के माइंड में आइडिया जनरेट होती है, वो सोचता है, देन ही स्टार्ट कम्युनिकेट. मतलब फर्स्ट रोल है सेंडर का कि जहाँ से कम्युनिकेशन स्टार्ट होता है. ओके, सो नेक्स्ट जो एलिमेंट है वो है एनकोडिंग मैसेज. सेंडर ने जब मैसेज को जनरेट किया अपने माइंड से, तो उस मैसेज को अब क्या करता है, वो एनकोडिंग में कन्वर्ट करता है. द आइडिया, इंफॉर्मेशन, व्यू, फैक्ट, फीलिंग, जो भी कुछ है, दैट इज जनरेटेड बाय द सेंडर एंड इज देन इंटेंडेड टू बी कम्युनिकेटेड फर्दर. द मैसेज जनरेटेड बाय द सेंडर इज एनकोडेड सिम्बॉलिकली, such as in the forms of words, pictures, gesture, etc. before it is being conveyed. Once message generated, thereafter the sender encoded the message by selecting the language in which the receiver can correctly understand. The medium of expression can be speaking, writing, eye contact, facial expression, gesture, posture and so on. मतलब जो भी मैसेज सेंडर को डिलीवर्ड करना है रिसीवर के लिए, वो मैसेज एक भाषा में कन्वर्ट करता है जो रिसीवर को अंडरस्टैंड होती है. वो भाषा ऐसी होगी कि जो रिसीवर को अंडरस्टैंड होगी. तो इसी मैसेज को सिंबॉलिक टर्म में या सिंबॉलिक टर्म को या किसी और फॉर्मेट कन्वर्जन को ही एनकोडिंग कहते हैं. और जो थर्ड
एलिमेंट है वो है चैनल, बिकॉज मैसेज जनरेट हुआ, अब उस मैसेज को एनकोड किया गया, लेकिन वो मैसेज तो हवा में जाएगा नहीं, उसके लिए एक प्रॉपर चैनल चाहिए मैसेज रिसीवर तक सेंड करने के लिए. So it is in the manner in which the encoded message is transmitted. The message may be transmitted orally or in writing. The medium of communication includes telephone, internet, post, fax, email, etc. The choices of medium is decided by the sender. The channel implies the carrier of the message, which can be face-to-face communication, telephonic conversation, video calling, लेटर, ईमेल, SMS, etc. जब भी मैसेज एनकोड होता है तो वो मैसेज सेंडर तक पहुंचाने में जो भी ऑप्शन हम चूज़ करते हैं उसे चैनल कहते हैं. जैसे अभी हमने देखा कि सोशल मीडिया है, टेलीफोन है, फेस टू फेस है, एंड सो ऑन है, ये चैनल है. और कुछ एग्जांपल अगर हम ले तो मूवीज़ में हमने देखा होगा, कहीं और सुना होगा कि जैसे पहले जब चैनल डेवलप नहीं थे तब मैसेज भेजा जाता था कबूतरों के ज़रिए, या कोई ऐसा व्यक्ति जो उस मैसेज को रिसीवर तक पहुंचाता था. बट आज बहुत से चैनल डेवलप हो चुके हैं, इसलिए कम्युनिकेशन करना और भी इजी हो चुका है. सो ये थर्ड एलिमेंट था चैनल, कि जिसके थ्रू मैसेज सेंडर जो है रिसीवर तक सेंड करता है, भेजता है. सो एप्रोप्रिएट चैनल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. देन जो मैसेज चैनल से रिसीवर तक जाता है तो रिसीवर का यहाँ पे एक रोल है कि ही इज़ द पर्सन फॉर whom the message was sent by the sender. It is very important for the sender to understand the receiver's decoding ability, interpretation capacity for an effective communication. रिसीवर कौन होता है? रिसीवर is the person to whom the message is directed. It is very important for sender to understand the receiver's decoding ability, interpretation capacity for an effective communication. तो यहाँ पर मैसेज रिसीवर के पास चैनल के थ्रू पहुँचता है. अब रिसीवर उस एनकोडेड मैसेज को डिकोड करता है. कैसे करेगा? It is the process of converting the symbols encoded by the sender after decoding the message is received by the receiver. अब रिसीवर उस मैसेज को डिकोड करता है जो सेंडर ने भेजा है और उसको इंटरप्रेट करता है, उसका मतलब समझने की कोशिश करता है. जो भी मैसेज सेंडर ने रिसीवर को दिया है वो रिसीवर उस मैसेज को समझने की कोशिश करता है कि इसका क्या मतलब हो सकता है. After decoding the message, the receiver will revert back to the sender in the form of feedback. Once the receiver confirms to the sender that he has received the message and understood it, the process of communication is complete. And now, अब receiver उसको revert back करेगा feedback के. So it is very essential part of communication process, as it indicates that there is no distortion of the message. यहाँ पे तो कंप्लीट हुआ फीडबैक, तो अब लेकिन फीडबैक के बाद जो रिसीवर है उसको सेंडर को फीडबैक देगा, यस नो, जो भी कुछ इन्फॉर्मेशन उसको समझ आई है उसका वो रिप्लाई करेगा प्रॉपर चैनल के थ्रू, और यहाँ पे कम्युनिकेशन प्रोसेस पूरा होगा. सो फॉर दिस पर्पज द रिसीवर लुक्स फॉर चैनल in the same way as sender communicated to the receiver. The communication can be regarded as effective when the message received and it interpreted in the same sense that the sender intended to convey. The effective communication is always receiver oriented rather than message oriented. यह बहुत ही नोट करने जैसा पॉइंट है कि इफेक्टिव कम्युनिकेशन ये हमेशा क्या होता है, इज ऑलवेज रिसीवर ओरिएंटेड. रिसीवर को जो समझ में आएगा उस लैंग्वेज में बात करना, और जो अप्रोप्रिएट चैनल है
उसी चैनल से सेंड करना। और ये कोई भी मैसेज ओरिएंटेड नहीं होता है, कम्युनिकेशन हमेशा रिसीवर ओरिएंटेड होता है, ये मैसेज ओरिएंटेड नहीं होता। द कम्युनिकेटर शुड मेक श्योर दैट द रिसीवर इंटरप्रेट द मैसेज एक्यूरेटली एंड प्रॉपरली, कि उसने जो भी बोला है वो रिसीवर तक पहुंच गया और उसी सेंस में पहुंच गया जिस सेंस में उसको कहना था। सो यहाँ पे ये कम्युनिकेशन प्रोसेस हमारा पूरा होता है। सो आई होप आपको कम्युनिकेशन प्रोसेस अच्छे से समझ आई होंगी, इसलिए इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और थैंक्स फॉर वॉचिंग लिसनिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।